اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ منصب تدریس اپنے آپ میں ایک بڑا منصب ہے، اور یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا منصب ہے۔ ہم حدیث بھی سنتے ہیں، انما بعثت معلما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کے لیے معلم ہیں، تو ایک معلم میں جتنے اوصاف ہونے چاہیے، اور ایک معلم بحیثیت معلم ہونے کے کیا ذمہ داری اور کیا کردار نبھا سکتا ہے اپنی قوم میں، یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے زیادہ بہتر کسی اور جگہ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جہاں اور چیزوں میں نمونہ ہیں، وہاں معلم اور مدرس ہونے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً ہونے والی مجلسوں کے علاوہ بھی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے مطالعے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منصب تدریس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شعبہ تعلیم کس حد تک مضبوط کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں تربیت کس انداز سے، اصحاب صفہ ہوں یا عموماً صحابہ ہوں، مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو بھی صحابہ اکرام کا مجمع تھا، حضور نے ان کو کس انداز سے تعلیم سے بھی آراستہ کیا، تربیت سے بھی آراستہ کیا، اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ یہ ہم علماء اکرام سے زیادہ امت میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہم اپنے مطالعے کا پہلو یہ بھی رکھیں کہ آپ صلی اللہ، ہم چونکہ علماء ہیں، اور وہ بھی وہ علماء ہیں جو منصب تدریس پر فائز ہیں، ہمارے ذمہ مدارس کی ذمہ داریاں ہیں، ہم معلم ہیں، مدرس ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو بھی ہم اپنے مطالعوں کے ذریعے سے اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی تمام باتیں انشاءاللہ مولانا عبدالودود صاحب پیش کریں گے۔ مولانا عبدالودود صاحب اپنی بات شروع کر دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وصفيا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کو کسی تقریر یا کوئی بیان کی نوعیت سے نہ سنیں، بلکہ یہ مذاکرہ ہے، اور آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ صرف اس غرض سے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اذا تقرر فی السمع تقرر فی القلب، مذاکرے سے بہت ساری تبدیلیاں انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ بہرحال حضرات اساتذہ کرام، ہمارے احباب، ہم جس نعمت عظمیٰ کو استعمال کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یہ تعلیم و تدریس ایک معزز اور قابل احترام منصب ہے۔ معلم اور مدرس تعلیم و تربیت کا وہ بنیادی عنصر ہے جس کے بغیر تعلیم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گویا معلم ہی معاشرے کا وہ بنیادی مرکز اور محور ہے جس کے گرد
तमाम तालीमी सरगर्मियाँ गर्दिश करती रहती हैं। माहिरीन तालीम के बकौल उस्ताद का किरदार एक अच्छे माली की तरह है। जिस तरह बाग में पौधों के मुनासिब अफजाइश माली की भरपूर तवज्जो के बगैर नहीं हो सकती, इसी तरह बच्चों की तालीम और तरबियत भी मुअल्लिम की भरपूर तवज्जो के बगैर नहीं हो सकती। हम सब इस मिसाल को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बागीचे में और बाग में जब माली नहीं होता तो उस गार्डन और उस बागीचे की क्या हालत होती है। कोई झाड़ इधर जा रहा है, कोई झाड़ इधर जा रहा है, कोई बेल इधर जा रही, कोई बेल इधर जा रही, कोई टहनी लंबी हो रही, कोई टहनी पस्त हो रही है। किसी को तराशने की ज़रूरत है, किसी को बढ़ाने की ज़रूरत है, किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी को खाद की ज़रूरत है। ये सारी जिम्मेदारियां एक माली पर, एक बागबान पर होती है। तो माहिरीन तालीम ने मिसाल जो दी है, बहुत प्यारी मिसाल दी है। मुअल्लिमी का सिलसिला ऐसा मुक़द्दस मशगला है जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आला सिफत और फ़राइज़ नबूवत में से एक फरीज़ा है। कुरान करीम की एक आयत है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इस आयत के पेश नज़र हम थोड़ी सी एक कुछ बातों का मुज़ाकरा करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने ईमान वालों पर एहसान किया है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, एहसान किस एतबार से किया है? तो इंसानों में उन्हीं में से एक रसूल को मबऊस किया, भेजा। वो रसूल इंसानों में आकर क्या करते हैं, क्या करेंगे? तो कहा यतलू अलैहिम आयाती, वो अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की निशानियों को, अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के अहकाम को लोगों के सामने पढ़ पढ़ के बताएंगे। ये पहली जिम्मेदारी। वयुज़क्कीहिम, और वो रसूल दुनिया में आकर इंसानों के दिलों को साफ करेंगे, तज़किया करेंगे और उसको आखिरत से जोड़ेंगे, दुनिया से हटाएंगे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब की तालीम देंगे। एक तो है यतलू अलैहिम आयाती और वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उससे पहले जो मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, उसमें से साफ और वाज़ेह अंदाज में कुरान ने कहा वह यतलू अलैहिम आयाती का वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, किताब के अहकाम भी समझाएंगे, किताब के जो तफासिर हैं, मफहूम है, वो भी रसूल समझाएंगे और हिकमत भी उनको सिखाएंगे। यहाँ पर इस आयत में भी वही अंदाज इख्तियार किया गया, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। इसमें चार मकासद बयान किए हैं जो हमसे आप ज़्यादा जानते हैं। रसूल दुनिया में आकर ये चार मकासद और चार जिम्मेदारी अदा करेंगे। तो हम लोग असातिज़ा के नाम से मौसूम हैं, मुअल्लिम के नाम से मौसूम हैं। इस आयत में गौर करते हैं तो पहला काम हम ये कर रहे हैं कि कुरान करीम की आयतें बच्चों को सिखा रहे हैं। जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वो काम हम कर रहे हैं। और दूसरा काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वही ज़क्कीहिम, कि दुनिया की आलाइकों से, आलाइशों से, गंदगियों से पाक करके बेहतरीन रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हम इस उम्मत के सरमाए को, इस उम्मत के बच्चों को और इस उम्मत के होनहारों को हम उस रास्ते पर लेके आ रहे हैं। वही ज़क्कीहिम के अंदर ये काम हम कर रहे हैं। वही युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, ये भी हम कर रहे हैं कि कुरान करीम क्या कहना चाह रहा है और हदीस मुबारक क्या कहना चाह रही है, हम बच्चों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन हमें इस वक्त ये समझना है, ये जानना है कि जो मुअल्लिम आज़म है, जिसका मुअल्लिम अल्लाह है, जिन्होंने अल्लाह से इल्म सीखा, वो मुअल्लिम पूरे दुनिया के मुअल्लिम बने। और उन्होंने खुद कहा है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर दुनिया में भेजा गया हूँ। तो उसकी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत और अंदाज़े तालीम क्या हैं, वो हमें मालूम करना है। और सबसे पहले हम ये भी अपने जहन में, दिलो दिमाग में बसा लें, रचा लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत उज़्मा हमें और आपको अता फरमाया है, इस नेमत का तसव्वुर दुनिया नहीं कर सकती। क्योंकि इस नेमत में हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि मरदुम साजी का काम
मरदुम साजी का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में किसी को नहीं दिया। दुनिया में दिया है तो अंबिया को दिया है। अंबिया को मरदुम साजी का काम दिया है। और वही काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया के विरासत में, अंबिया के सदक़े में इस उम्मत के उलमा को दिया है कि इस उम्मत के उलमा भी अंबिया के वारिस हैं। जो काम रसूलुल्लाह और नबी करते थे वही काम इस उम्मत के उलमा कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी दौलत है, इसका अंदाजा और इसका तस्वुर हम नहीं कर सकते। कि मरदुम साजी ऐसा काम है, इंसान को इंसान बनाना, इंसान में इंसानियत पैदा करना। ये ऐसा काम है कि जो हर कस व नाकस नहीं कर सकता। ये एक अजीब तस्वुर है, एक अजीब मफहूम है इसका, कि कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री, कोई ऐसी दुकान ऐसी मार्केट में नहीं है कि जिस कारखाने में, जिस कंपनी में मरदुम साजी का काम हो रहा हो। सिर्फ दुनिया में मदरसे के नाम पर कारखाना है, खानका के नाम पर कारखाना है। जी, दावत व तबलीग को भी हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन मदरसा जो कारखाना है मरदुम साजी का, इसकी मिसाल कोई नहीं। और इस मदरसे में, इस गाड़ी को बनाने वाले, इस कारखाने में मर्द इंसान को इंसानियत सिखाने वाले, इंसान को इंसान बनाने वाले, वो असातिज़ा और मुअल्लिम है। अगर उन असातिज़ा के अंदर, उन मुअल्लिमीन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज तरबियत और अंदाज तालीम न हो, तो फिर हम समझते हैं कि इस काम में और मरदूम साजी वाले काम में और इंसान को इंसान बनाने वाले काम में हम कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं। एक बात का और अंदाजा साथ में लगाएं, फिर उसके बाद असल बात की तरफ मैं जाना चाहता हूँ कि हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब दुआ फरमाई। शायद आप लोगों को दुआ भी याद होगी, मालूम हो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर ये दुआ फरमाई है। अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल मुअल्लिमीना व अतली आमारहुम व बारिक लहुम फी कसबिहिम व मआशिहिम। अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल मुअल्लिमीना व अतली आमारहुम। ए अल्लाह, कुरान सिखाने वालों की मग़फ़िरत फरमा और उनकी उम्र को दराज फरमा। व बारिक लहुम फी कसबिहिम व मआशिहिम, और उनकी कमाई में, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। कैसी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर हम सब के लिए, दुनिया के मुअल्लिमीन के लिए, जो अंबिया के वारिस हैं उनके लिए फरमाई। कितना बड़ा एजाज है हमारा और आपका और दुनिया के मुअल्लिमीन का, कुरान सिखाने वालों का। इसकी कदर, इसकी अजमत, इसकी वक़ात रोजाना हमारी सुबह को होनी चाहिए। इस्तेहजार इसका रोजाना हमारी सुबह को होनी चाहिए, उस वक्त खुसूसन जबकि हम दरसगाह की तरफ चल रहे हों, हमारे पांव दरसगाह की तरफ जा रहे हों। ये तसव्वुर होना चाहिए, अल्लाह मैं किस काम की तरफ जा रहा हूँ, कि जिस काम के लिए, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई। हमारे लिए रसूलुल्लाह हज्जतुल वदा के मौके पर दुआ कर रहे हैं, और दुआ में क्या क्या चीजें मांग रहे हैं हमारे लिए, इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। बहरहाल, हम उस्ताद हैं, हम सब असातिज़ा हैं, मुअल्लिमीन हैं। हमारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है और उनका जो अंदाज था, वो हमारे अंदर आ जाए तो हम इस काम में बहुत तरक्की कर सकते हैं। इस मैदान को हम बहुत बेहतरीन और खुशगवार बना सकते हैं। मैंने जो टूटा फूटा मुताला किया है इस उन्वान को जीनत देने के लिए, उसमें से पहली बात मुझे ये नज़र आई कि मुअल्लिम के अंदर सबसे पहली सिफत वो होनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की नुमाया सिफत है। वो सिफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवासिलुल अहज़ान और दाइमुल फ़िक्र। मुतवासिलुल अहज़ान थे हमारे नबी और दाइमुल फ़िक्र थे सहाबाए किराम की तरबियत में, दीगर उमूर में। तो ये सिफत मुअल्लिम की होनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वाज़ेह और नुमाया तौर पर थी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन रहते थे, फिक्रमंद रहते थे और मुसलसल फिक्र में रहते थे। मुतवासिलुल अहज़ान, मुसलसल गम में रहते थे कि इनकी तरबियत कैसी करनी है, कौन से गोशे को इख्तियार करना है, किस अंदाज को इख्तियार करना है, कौन से मौके पर क्या बोलना है, कौन से मौके पर क्या रवैया इख्तियार करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत हमारे अंदर और तमाम मुअल्लिमीन के अंदर होनी चाहिए कि फिक्रमंद हों कि जिस सरमाए को हमारे पीछे लगाया गया है, जिस दौलत को हमारे पीछे लगाया गया है, उम्मत का ये सरमाया हमसे कैसे निखर जाए, कैसे बेहतर से बेहतर बन जाए। उसके लिए पहली चीज मुअल्लिम के अंदर होनी चाहिए फिक्र, और उसके लिए
मुसलसल दाइमुल फिक्र होनी चाहिए। पहली सिफत ये होनी चाहिए मुअल्लिम की, जिम्मेदारी के तौर पर मुअल्लिम ये चीज इख्तियार करे। दूसरी चीज और दूसरी जिम्मेदारी मुअल्लिम की यह है कि दर्स व तदरीस का काम जो वो कर रहे हैं उसमें रिया और दिखलावा नहीं होना चाहिए। ये भी एक मुअल्लिम और उस्ताद की जिम्मेदारी है कि दर्स व तदरीस के काम में रिया और दिखलावा ना हो, अगर है तो उसको झटक दे, दूर कर दे, ये जिम्मेदारी। तीसरी जिम्मेदारी मुअल्लिम की ये मिली मुझे कि मुअल्लिम एक बड़ी जिम्मेदारी की उसकी ये भी है कि मालूमात और अनवार इल्म और हुस्न उसलूब से शागिर्दों में मालूमात को तकसीम करे। हुस्न उसलूब, अहसन उसलूब से शागिर्दों में उलूम को और मालूमात को तकसीम करे। ये उस्ताद की जिम्मेदारी। मुअल्लिम की जिम्मेदारी, तीसरी जिम्मेदारी जो मैं कह रहा था कि असातिज़ा और मुअल्लिमीन की जिम्मेदारी है कि वो मालूमात को और इल्म के नूर को अच्छे अंदाज में अहसन तरीके पर हुस्न उसलूब के साथ शागिर्दों में तकसीम करे। ये दो चार जुमले अपने अंदर बहुत वसी मफहूम रखते हैं और उसके साथ साथ तलबा में दिलचस्पी और शौक को पैदा करे, और उसके लिए जो भी जफाकशी करनी पड़े, जितने किताबों का मुताला करना पड़े। और बहुत सारे मुताले को मैंने ये देखा, बहुत सारे मुताले में ये बात सामने आई कि असातिज़ा इन कामों को अच्छे अंदाज में करने के लिए, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कि जो भी मजमून लेके दरसगाह में जा रहे हैं, जो भी उन्वान लेके जब दरसगाह में जा रहे हैं, नहव का उन्वान हो, सर्फ का उन्वान हो, फिक़ह का उन्वान हो, फन उसूल फिक़ह का उन्वान हो, तफसीर उसूल तफसीर का उन्वान हो, इस उन्वान को अहसन तरीके पर और और अहसन उसलूब के साथ और इस मालूमात को बेहतर से बेहतर अंदाज में, आसान से आसान तरीन अल्फाज में तलबा के सामने किस तरह हम पेश कर सकते हैं, इसकी तैयारी क्लास में जाने से पहले असातिज़ा करे। ये उसकी बड़ी जिम्मेदारी। तलबा में शौक का पैदा करना उस्ताद की जिम्मेदारी। तलबा में शौक पैदा करना उस्ताद की जिम्मेदारी है, और इस शौक को पैदा करने के लिए, दिलचस्पी को पैदा करने के लिए, जो माहिरीन उलूम हैं, माहिरीन फन हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे, उन अखलाक में जितनी चीज़ें नज़र आती हैं वो हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। सहाबाए किराम से गलती हो जाती थी लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर शिकन नहीं आता था, गुस्सा नहीं होते थे, उसको दरगुजर करते थे। तो तलबा में शौक पैदा करने के लिए, तलबा में दिलचस्पी पैदा करने के लिए हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो और मुस्कान हो और तलबा की हमदर्दी और खैरखाई हो। यहाँ तक मुताले में एक बात यह भी आई थी कि गालिबन हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से यह बात आई थी कि वो फरमाते हैं कि तलबा के साथ ऐसी हमदर्दी इख्तियार की जाए, ऐसा रवैया इख्तियार किया जाए कि दूसरे देखने वाले ये तमीज़ ना कर सकें कि ये तलबा हैं, ये इनके शागिर्द हैं या इनकी औलाद है। ऐसा हमारा रवैया तलबा के साथ हो और मुतालिमीन के साथ हो कि देखने वाले ये फ़र्क ना कर सकें कि ये तलबा हैं या उनकी औलाद है। उसके बाद ये तलबा में शौक और दिलचस्पी पैदा होता है और तलबा असातिज़ा की तरफ माइल होते हैं। उसके बाद तकरीबन 4 नंबर, पांचवी जिम्मेदारी असातिज़ा की ये होती है कि असातिज़ा खुद निज़ामुल औकात का खूब लिहाज करें। जो निज़ाम बनाया गया है मदरसे में, स्कूल में, कॉलेजों में, सबसे पहले असातिज़ा उस निज़ाम का लिहाज करे, उसको अपनी जिम्मेदारी समझे। इसका असर तलबा पर अच्छा खासा पड़ता है। वो देखते हैं, वो बोलते नहीं है। तलबा देखते हैं, बोलते नहीं है। किताबों में लिखा है कि तलबा घुटते रहते हैं कि जब ये खुद अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते तो हम क्यों इसकी जिम्मेदारी अदा करेंगे। हम तलबा को निज़ामुल औकात का पाबंद बनाना चाहते हैं और हम उस पर प्रेशर डालते हैं और ताकीदन उसको कहते हैं, यहाँ तक कि सजा के घाट भी उतारते हैं। लेकिन अगर हम निज़ामुल औकात के पाबंद नहीं हैं तो फिर हमारा कहना, नसीहत करना तलबा पर कोई खास असर नहीं रखता। छठी जिम्मेदारी तलबा के साथ असातिज़ा की जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी ताकत मुताले में और किताब बीनी में जितना लगा सके लगा दे, क्योंकि असातिज़ा और मुअल्लिम उसी का नाम है कि वो दुनिया के मालूमात को फराहम करके, तो दुनिया के मालूमात को जमा करे और जमा करके तलबा पर फराहम कर दे।
आगे ये लिखा है किताबों में कि तलबा इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि आज हमारा उस्ताद और हमारे शेख मुताला करके आए हैं या नहीं आए। वो दो चार सतर तर्जमा और तफसीर करने के बाद समझ जाते हैं। फिर तलबा में खुद ब खुद सुस्ती और गफलत पैदा हो जाती है, और उस्ताद की तरफ से बेइल्तिफाती पैदा हो जाती है इस बात पर कि जब ये खुद मुताला करके हमें नहीं दे रहे हैं तो इसके पास पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ये 5 या 6 जिम्मेदारी हुई। उसमें से खुसूसन जो जिसको ज्यादा अहमियत दी गई है उसको किताबों में ये लिखा है कि निज़ामुल औकात की पाबंदी, और दूसरे नंबर पर तलबा के साथ हमदर्दी और तलबा के साथ शफकत। ये हमदर्दी और शफकत की वजह से हमारे बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। तुंदखुई और बेरुखी और गलत रवैया तलबा के साथ तमाम काम को बिगाड़ देता है। इसलिए कि हम सब इसका अंदाज़ा अच्छी तरह कर सकते हैं कि कोई काम मोहब्बत और शफकत से करें। मिसाल के तौर पर तलबा के साथ शफकत से पेश आना, मोहब्बत, और ये ऐसी चीज़ है, शफकत और मोहब्बत ऐसी चीज़ है, ऐसी ताकत है कि जो दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर देती है। तलबा के साथ हर वक्त सख्ती का रवैया उन्हें आपसे दूर कर सकता है। तलबा को बगैर कुछ कहे अपने रवैये से ये समझाने की कोशिश करें कि आप उनके सच्चे हमदर्द और खैरखा हैं। सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे। हम सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ कैसे रहते थे। तो ये जो बात है, आखिरी बात मैं आप गोश गुजार करना चाहता हूँ। मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहू अलैना ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, और उसको उस तकरीर को तहरीर में तब्दील भी किया गया। मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहू अलैना फरमाते हैं कि असातिज़ा और मुअल्लिमीन की जिम्मेदारियों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत में गौर करें, और गौर करने के बाद अपना खुद मुहासबा करें, अपना खुद जायजा लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तलबा, अपने शागिर्दों यानी सहाबा किराम को किस अंदाज में नसीहत करते थे, और किस अंदाज में पढ़ाते थे, किस अंदाज में दीनी अहकाम सिखाते थे, इस्लाम सिखाते थे। उसमें सबसे नुमाया वस्फ है और नुमाया तौर पर, वाज़े तौर पर जो चीज़ नजर आती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन मामले में और इन कामों में जो चीज़ नजर आती है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम को कहने से ज्यादा खुद करते थे। हज़रत मुफ्ती तकी साहब दामद बरकत फरमाते हैं कि आज हमारी जिंदगी में अगर करना ज्यादा कहना कम हो जाए तो उम्मीद है कि तलबा के पीछे ज्यादा मगजमारी करने की और ज्यादा मशक्कत उठाने की, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सीरत के बहुत से गोशों में ये चीज वाज़े तौर पर नजर आती है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दिया कि सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो अम्र दरपेश था, जो मामला दरपेश था, जो बड़ा मुश्किल मामला था कि उस मौके पर तो उमरा और हज से रोक दिया गया। उमरा से जब रोक दिया गया तो साहबा किराम अंदर अंदर घुटने लगे, गुस्सा होने लगे। खास तौर पर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत गजबनाक, बहुत गुस्सा हो गए कि हम क्या कमजोर हैं कि इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करने के लिए आमादा हो चुके हैं। तो उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी चौड़ी तकरीर करने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ ले गए, खैमे में तशरीफ ले गए। वहां जाकर हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको देखा, आपके चेहरे पर गम के आसार थे, टेंशन। तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जो राय दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस राय पर अमल किया, उम्मत के लिए, हमारे लिए खुसूसन ये सबक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को कुछ कहे बगैर सबसे पहले अपना हलक कर लिए। और जब सहाबा जो आशिक रसूल थे, जानिसार साहबा थे, उन्होंने जब देखा कि मेरा महबूब खुद पहले हलक हो गया तो सहाबा ही आपस में दो दो करके बैठ गए और हलक होना। ये पेश कदमी अमल में ये तमाम साथियों को, तमाम तलबा को, हमारे जितने भी मसाइल हैं वो हमारे हल कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला इतना हल हुआ। गर्ज है तमाम कामों में असातिज़ा और मुअल्लिमीन की एक जिम्मेदारी है कि वो खुद उस काम में पेशकदमी करे। उसकी मिसाल बहुत सारी दी है मुफ्ती तकी साहब दामद बरकत। उसमें से एक मिसाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की नमाज की ताकीदी हुक्म फरमाते थे, ताकीदन फरमाते थे। और 5 वक्त 6 वक्त की नमाज फर्ज है वितर को मिलाकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5-6 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे, इशराक पाबंदी से पढ़ते थे, तहज्जुद पाबंदी से पढ़ते थे, चाश्त पाबंदी से पढ़ते थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सखावत का हुक्म फरमाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा सखावत रसूलुल्लाह करते थे। इन बातों को सामने रखकर मुफ्ती तकी साहब दामद ने फरमाया कि हम भी उस नबी के वारिस हैं, और खुसूसन इन तालीम और ताल्लुम में हम अमल में पेश कदमी करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि तलबा को मुताला करने से पहले हम खुद मुताला करें,
طلبا کو کسی کام پر ابھارنے سے پہلے اس کام میں پیش رفتی ہم کریں، طلبا کو صف اولا کا پابند بنانے سے پہلے صف اولا کی پابندی ہم کریں، طلبا کو تہجد کا پابند بنانے سے پہلے تہجد کی پابندی ہم کریں، طلبا کو تلاوت قرآن پر ابھارنے سے پہلے تلاوت قرآن کی پابندی ہم کریں، تو یہ طلبا خود بخود ہمارے پیچھے چلیں گے۔ یہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم علینا نے ایک تحریر میں اساتذہ کے لیے یہ باتیں نصیحت کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہم سب ساتھیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔